Good morning, everyone. Hope you all are taking care of yourself and your family. I always wish for your well being and happiness. Let's continue chapter number 13, Structure and Functions of Plants. Today we will discuss bookwork and question answers. Welcome back in today's EBS class. Students, in the previous video, we did chapter 13, part 1. The name of the chapter is Structure and Functions of Plants, in which we discussed about different parts of the plant and their function. Now, before starting our today's class, let's recap the important points of the chapter. First one, the roots, stems, leaves, fruits, flowers and seeds are the different parts of a plant. एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स और हर पार्ट का कुछ ना कुछ काम होता है. अब रूट क्या काम करती है? द रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सोइल. रूट्स प्लांट को मिट्टी में फिक्स करके रखती है एंड इट टेक्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल और सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेती है. अब स्टेम का क्या काम है? द स्टेम कैरीज फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो फूड और वाटर है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक कौन लेके जाता है? स्टेम. अब जब हम फ्रूट कट करते हैं तो बेटा उसमें से क्या निकलते हैं? सीड्स. इट मीन्स अ फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड इट. और जब उस सीड्स को प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं देन इट ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट. और वो तीन कंडीशंस कौन सी हैं? एयर, वाटर एंड वार्मथ. क्लियर? बेटा अभी मैंने आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए. नाउ वी विल सी द एनिमेशन ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस बुकवर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स. Chapter 13, Structure and Functions of Plants. Parts of a plant. There are two main parts of a plant. These are root and shoot. Root. The part of a plant that grows under the soil is called the root. The root is of two types, taproot and fibrous root. Taproot, a single main root that grows downwards from the base of the stem and gives out branches sideways, is called a taproot. Plants like pea, bean, gram, turnip, radish and carrot have taproot. Fibrous root. A number of thread-like roots that grow downwards from the base of the stem are called fibrous roots. Plants like grass, onion, maize, rice and wheat have fibrous roots. Functions of roots. Roots hold the plant firmly in the soil. The tiny hair on the root, called root hair, take water and nutrients from the soil. Roots hold the soil and prevent it from being washed away. Roots of plants like carrot, radish, turnip, sweet potato and beetroot swell up by storing food in them. We eat these roots as food. Shoot. The part of a plant that grows above the soil is called the shoot. It consists of stem, leaves, flowers, fruits and seeds. Stem. The part of a shoot that bears leaves, buds, flowers and fruits is called the stem. Plants like mint and coriander have a soft stem. Plants like rose and tulsi have a thin and woody stem. Plants like grapevine, pumpkin and watermelon have a weak stem. These plants need support to stand straight. Plants like neem, mango, banyan, apple and peepal have a hard and woody stem called the trunk. Functions of the stem. The stem helps most plants stand straight. It carries water and nutrients from roots to leaves, flowers and fruits. It carries food made by the leaves to all parts of the plant. In some plants such as potato and ginger, the stem stores food. Leaves. A plant has several leaves. Most leaves are green in color. Structure of a leaf. A leaf has many parts. A leaf is attached
the leaf blade is called a midrib. Veins help the leaf distribute water and food. A leaf has many tiny pores, holes called stomata, on its lower surface. Stomata cannot be seen with the naked eye. Functions of leaves. Leaves make food for the plant in the presence of sunlight using carbon dioxide gas from air and water from soil. This process of making food is called photosynthesis. So the leaf is called the kitchen of the plant. During the process of photosynthesis, leaves give out oxygen gas into the air. Stomata on the leaves help the plant breathe by taking in and giving out air. Leaves of plant like cabbage, spinach, mint, coriander and mustard are eaten as food. Many animals like cow, buffalo, goat, sheep, giraffe, etc. also feed on the leaves. Different leaves. Leaves are of different shape and size. Leaves have different colors and smells. Uses of leaves. Leaves have many uses in our lives. Leaves are used as plates for eating food. Leaves of some trees, such as neem, are used as medicine. Mehndi leaves are used to color hands and feet. Leaves are used for decoration purposes. They are tied on a string to decorate our doorways. Leaves of the betel plant are eaten. Flowers. Flowers are of different colors, shapes and sizes. They make the plant beautiful. Do you know where flowers come from? The buds bloom into flowers. You must have seen butterflies and bees near the flowers. They come to the flowers to suck their nectar. The base of the flowers contains nectar. With time, the flowers shed their petals and grow into fruits. Functions of flowers. Most flowers change into fruits containing seeds inside them. Fruits and seeds. Fruits develop from the flowers. Most fruits contain seeds inside them. We eat fruits like mango, apple, banana, jamun, papaya, muskmelon, etc. Fruits are also eaten by many animals and birds. Fruits like jamun and mango have only one seed. Fruits like apple and orange have few seeds, while fruits like papaya and muskmelon have many seeds. Vegetables such as tomato, brinjal, gourds, etc. are also fruits. A seed grows into a baby plant when it gets enough water, air and warmth. Students, let's start exercise part of this chapter. Question A. Tick the correct answer. बेटा आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है. फर्स्ट वन, अ बर्ड चेंजेस इनटू अ फ्लावर, फ्रूट, लीफ. बर्ड किस में चेंज होता है? फ्लावर में, फ्रूट में या लीफ में? विच इज द करेक्ट आंसर? यस, फ्लावर इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रूट्स. रूट्स कितनी तरह की होती हैं? 3, 2, 4. मैंने आपको रूट्स दिखाई भी थी बेटा, याद है? यस, करेक्ट आंसर इज 2. थर्ड वन, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा, वेन्स, एपेक्स. जो टाइनी पोर्स होते हैं लीफ पर, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा, वेन्स, एपेक्स. करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा. फोर्थ वन, फ्रूट्स कंटेन फ्लावर्स, सीड्स, बर्ड्स. फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? फ्लावर्स, सीड्स या बर्ड्स? बेटा जब हम फ्रूट को कट करते हैं तो उसमें क्या निकलता है? यस, सीड्स. सीड्स इज द करेक्ट आंसर. Question number B. Write true or false. You have to tell whether the statements are true or false. There are 4 statements. First one, the stem is the underground part of a plant. Stem plant का underground part होता है, यानी कि वो part जो मिट्टी के नीचे होता है वो stem होता है. Is it correct? No, it is false because the underground part of a plant is called root. Second, the leaf is called the kitchen of the plant. लीफ को प्लांट की किचन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज खाना बनता है वहाँ पर. सो इट इज़ ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू. वेरी गुड. थर्ड वन, द फ्रूट चेंजेस इनटू अ फ्लावर.
फ्रूट एक फ्लावर में चेंज हो जाता है. इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स बिकॉज अ फ्लावर चेंजेस इनटू द फ्रूट. फोर्थ, द पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड रूट. पोटैटो एक अंडरग्राउंड रूट है. इज इट ट्रू और फॉल्स? बेटा, इट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम. क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. बेटा यहाँ पर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया है, आपको उसमें से करेक्ट वर्ड चूज करके लिखना है. फर्स्ट वन, द टू टाइप्स ऑफ रूट्स आर डैश एंड डैश. दो तरह की रूट्स कौन सी होती हैं बेटा? देखिए अपने हेल्प बॉक्स में करेक्ट आंसर क्या है? फाइब्रस एंड टैप रूट. सेकेंड, द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड अ. ट्री के स्टेम को हम क्या कहते हैं? Yes, correct answer is trunk. Third one, the dash make food for the plants. Plants के लिए खाना कौन बनाता है? Yes, leaves. Leaves make food for the plants. Fourth one, the dash gives rise to a new plant. नया पौधा किससे बनता है? Yes, correct answer is seed. Question number D. Answer these questions. You have to answer the questions given over here. यहाँ पर 5 questions given हैं. You have to write down answers of these questions in your notebook. First one, what are the functions of root stem? रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं बेटे? सबसे पहले रूट पौधे को मिट्टी में होल्ड करके रखती है. सेकेंड, जो रूट हेयर होते हैं वो मिट्टी से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. थर्ड क्या होता है? रूट्स होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. फोर्थ, कुछ प्लांट्स की रूट्स को हम खाते भी हैं लाइक कैरेट, रेडिश. नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेम. स्टेम के क्या काम होते हैं? नंबर 1, द स्टेम हेल्प्स मोस्ट प्लांट्स स्टैंड स्ट्रेट. स्टेम प्लांट्स को सीधा खड़ा होने में हेल्प करते हैं. नंबर 2, स्टेम वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रूट से डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाते हैं. लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सभी पार्ट्स में लेकर जाते हैं. नंबर 3, लीव्स में जो खाना बनता है उस खाने को स्टेम डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है. फोर्थ, कुछ प्लांट्स के स्टेम को हम खाते भी हैं लाइक पोटैटो, जिंजर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लीफ प्लेट? लीफ प्लेट क्या होता है? ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ प्लेट. जो लीफ का फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है उसे हम लीफ प्लेट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? स्टोमेटा क्या काम करता है? स्टोमेटा हेल्प द प्लांट ब्रीथ बाय टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर. स्टोमेटा प्लांट को सांस लेने में हेल्प करता है. नंबर 4, ड्रॉ एंड लेबल द पार्ट ऑफ अ लीफ. आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें पार्ट्स ऑफ लीफ आपको लिखने हैं एंड दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 75 इन योर बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इसमें क्या होता है? लीव्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं एयर से, वाटर यूज़ करते हैं सॉइल से और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट खाना बनाते हैं. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द एयर. क्लियर? और इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं. क्वेश्चन ई, थिंक एंड आंसर. बेटा देयर आर 2 क्वेश्चंस. आपको इनके आंसर्स सोच के लिखने हैं. फर्स्ट वन, व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स रूट्स आर कट? अगर एक प्लांट की रूट्स को कट कर दिया जाए तो क्या होगा? सोचो, अगर रूट्स नहीं होंगी प्लांट की तो क्या होगा? यस, इन द एब्सेंस ऑफ रूट्स प्लांट्स विल नॉट गेट वाटर एंड मिनरल. रूट्स के एब्सेंस में प्लांट को वाटर और मिनरल नहीं मिलेंगे सॉइल से, और अगर वाटर और मिनरल नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? प्लांट विल विल्ट. प्लांट मुरझा जाएगा एंड अल्टीमेटली डाई. नेक्स्ट, प्लांट शुड नॉट बी केप्ट इन क्लोज रूम्स. व्हाई? प्लांट्स को बंद कमरों में नहीं रखना चाहिए. क्यों? सोचिए इसका आंसर क्या है? देखो बेटा, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट. और अगर हम प्लांट को क्लोज रूम में रखेंगे तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी. सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट खाना कैसे बनाएगा? और अगर खाना नहीं बनाएगा तो प्लांट जीवित कैसे रहेगा? सो इट इज नेसेसरी टू कीप द प्लांट्स इन ओपन. वी शुड नॉट कीप द प्लांट इन क्लोज्ड रूम्स. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. मुझे पता है आपको इस पार्ट का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता
है ना? सबको बहुत अच्छा लगता है ना एक्टिविटी टाइम? चलिए आज की एक्टिविटी शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, डिस्कस फोटोसिंथेसिस इन योर क्लास। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, और अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स में भी किया है। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और खाना पौधे के लिए कौन बनाते हैं? लीव्स। वो क्या करते हैं? वो मिट्टी से वाटर और मिनरल्स लेते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन, जिसको हम यूज करते हैं। आई होप नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लियर टू यू। बेटा अब आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, दैट इज बिल्ड अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? अ टेरेरियम इज अ ग्लास कंटेनर इन विच सिलेक्टेड लिविंग प्लांट्स आर ग्रोन एंड ऑब्जर्व्ड। टेरेरियम एक ग्लास कंटेनर होता है जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। अभी हम एक टेरेरियम बनाएंगे, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और आप भी घर पर इसको बना सकते हैं। ओके बेटा, टेरेरियम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ब्रॉड माउथ ग्लास। कोई आप प्लास्टिक का ग्लास ले सकते हो या फिर कांच का ग्लास ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये मैंने ग्लास लिया। अब इसमें सबसे पहले हमें डालने हैं स्टोन्स। स्टोन्स की एक लेयर डालने के बाद हम इसमें ड्राई लीव्स और ट्विग्स डालेंगे। उसके बाद इसमें हम सॉइल डालेंगे। सॉइल डालने के बाद जो भी हमारे पास एक प्लांट है जिसको हम देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो इस प्लांट को हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, डेकोरेशन के लिए आप ग्रास भी साथ में लगा सकते हो, ग्रीन ग्रास। ठीक है बेटा, और वाटर देने के लिए आप स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं या फिर आप स्पून से इसमें वाटर दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, टेरेरियम तैयार है। आप घर में भी इस टेरेरियम को बना सकते हैं। ओके, नाउ you have to do activity that is given in your book on page number 77. In this activity you have to make the sprouts. ये एक्टिविटी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी और फिर आप इसको घर पर भी करेंगे। ओके बेटा, स्प्राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ग्रीन ग्राम। ये देखो ग्रीन ग्राम, जिसको हम बोलते हैं साबुत मूंग। ये सबके घर में होती है साबुत मूंग, ठीक है। फिर इस साबुत मूंग को क्या करना है, हमने अच्छी तरीके से वॉश करके पूरी रात पानी में भिगा कर रखना है। देखो मैंने रात से भिगा रखी है इसको, ठीक है। रात को भिगाने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में आपने इसके पानी को ड्रेन करना है, ठीक है। ड्रेन करने के बाद इस मूंग को आपने एक कंटेनर में लेना है। और उसको अच्छी तरीके से ढककर रख देना है 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद बेटा आप देखोगे कि आपकी मूंग से ये वाइट वाइट थ्रेड्स निकल जाएंगे। ये वाइट थ्रेड्स क्या है बेटा, यंग रूट्स। और यही हमारे क्या है, स्प्राउट्स, विच आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। बेटा हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? We learned about different parts of plants and their uses. और हम सबको मालूम है fruits and vegetables are very essential for us because they all are full of nutrients. Now we will make the salad. हम सैलेड बनाएंगे। मैं ये एक्टिविटी आपको करके दिखाऊंगी। आपने भी एक्टिविटी घर पे करनी है और सैलेड को इंजॉय करना है। ओके बेटा, सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपकी जो भी मनपसंद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आपने लेने हैं, उन्हें अच्छी तरीके से वॉश करना है।
उसके बाद इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को घर के किसी फैमिली मेंबर से, बड़े फैमिली मेंबर से कटवाना है और उसको एक बॉल में डाल लेना है। जैसे मैंने ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सारी कट करके एक बॉल में डाल ली। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ड्रेसिंग के लिए क्या है, ब्लैक पेपर पाउडर। हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। दिस इज ब्लैक सॉल्ट। अगर आपके पास चाट मसाला है, आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। टेस्ट के लिए हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। ठीक है, देखो बेटा हमने अभी स्प्राउट्स बनाए थे, तो हम इसमें स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं। हम इसको रॉ भी डाल सकते हैं, कच्चे भी डाल सकते हैं, या इसको हम हल्का सा बॉयल करके, आप अपनी मम्मा को कहकर इसको हल्का सा बॉयल करवाकर फिर भी डाल सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा सैलेड तैयार हो गया है। ठीक है, ये हमारा है सैलेड। इसको आप बनाइए और इंजॉय करिए। नाउ आई विल टेल यू इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। बेटा आप सबको पता है कि क्लीनिनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बीइंग क्लीन एंड कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। क्लीन इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड माइंड। साफ इन्वायरमेंट हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और हमारे माइंड को फ्रेश रखता है। क्लीन सराउंडिंग्स डज नॉट अलाउ एनी डिजीज टू अटैक अस। अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ है तो कोई भी डिजीज हमें अटैक नहीं कर सकती। इफ द सराउंडिंग्स अराउंड अस इज डर्टी देन इट मे गिव राइज टू मैनी हार्मफुल माइक्रोब्स एंड वायरसेस। और अगर हमारे आसपास का वातावरण गंदा है, हमारी सराउंडिंग्स गंदी हैं, तो क्या होगा, माइक्रोब्स और वायरसेस ग्रो होंगे और उससे क्या होगा, वी मे फॉल सिक। Therefore, it is very important to be aware of the necessity of cleanliness in our lives. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में cleanliness को importance दें, उसकी ज़रूरत को समझें। We all need to take steps towards cleanliness to lead a healthy and happy life. ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए क्लीनिनेस की तरफ कदम बढ़ाएं। आप सब देख रहे हो कि कोरोना है आजकल, तो हम वैसे भी कहते हैं कि हमें अपने बार बार हैंड वॉश करने चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए अगर हम बाहर जा रहे हैं, अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करके बात करनी चाहिए। हमें अपने माउथ को, अपनी आइज़ को, अपने नोज़ को बार बार टच नहीं करना चाहिए। हमें अपने वातावरण को, अपनी सराउंडिंग्स को भी क्लीन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, वी हैव टू कीप आवर होम क्लीन। हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है, डस्टिंग करनी है, मोपिंग करनी है, झाड़ू लगाना है। जो भी हमारा गार्बेज होता है उसको हमें कवर्ड डस्टबिन में डालना है ताकि जर्म्स ग्रो ना कर सकें। और हमें अपने घर में और घर के आसपास जो भी खाली जगह है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट साफ रह सके। स्टूडेंट्स, यू हैव टू सेंड मी पिक्स while cleaning your home, watering plants or planting trees by 22nd of October. आपको 22 अक्टूबर तक मुझे अपनी एक पिक भेजनी है घर की सफाई करते हुए, पौधा लगाते हुए या फिर पौधों को पानी देते हुए. ओके? कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. बेटा, do your bookwork and notebook work in neat and clean handwriting. If you face any difficulty, feel free to contact me on my WhatsApp number. Take care of yourself. Bye.